Hello everyone, welcome to the video lecture series of Integrated Circuit, and this is lecture number 13. We were doing linear applications of IC op-amp, and in the last lecture we have seen op-amp working as a summing amplifier or as an adder. Adder का काम क्या था कि जो भी हम इनपुट वोल्टेजेस अप्लाइड करते हैं आउटपुट पे उनका समेशन हमें वो प्रोवाइड कर रहा था. So now today's topic is op-amp as a difference amplifier. So जैसे कि नाम suggest कर रहा है difference amplifier, so it can also be known as subtractor. So subtractor है तो obviously output voltage क्या provide करेगी? Output voltage will provide the difference of input voltages. जो input voltage हम provide करेंगे उनका difference हमें output पे मिलेगा. That is why it is known as difference amplifier. So let us start the explanation part. Difference amplifier or op-amp subtractor is specifically designed op-amp based amplifier circuit which amplifies the difference between two input signals and rejects any signals common to both input. It means कि ये जो difference amplifier है ये दो इनपुट सिग्नल्स जो है उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा, लेकिन अगर उन दोनों सिग्नल में कोई कॉमन सिग्नल होगा, अगर वो दोनों में से कोई भी सिग्नल कॉमन होगा तो उन्हें रिजेक्ट करेगा और डिफरेंस जो उन दोनों के बीच का होगा उसे एम्पलीफाई करके आगे भेजता रहेगा आउटपुट पर. Right, so this is what a difference amplifier do. So ये हमारा difference amplifier का circuit है. As we can see we have an op-amp. ये हमारे पास op-amp है with the inverting and non-inverting terminals. So inverting terminal पे हमने एक inverting terminal है means negative feedback हमने provide की है through this resistance R2 and it is connected with the input voltage V1 through the resistance R1. Right? Similarly जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसे हमने V2 वोल्टेज प्रोवाइड किया है थ्रू द रेजिस्टेंस R3 एंड एक और रेजिस्टेंस R4 है वो पैरेलली कनेक्टेड है R3 के साथ एंड आल्सो इट इज ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड है. देन वी हैव V0 व्हिच इज द आउटपुट एंड हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो हमारे करंट ट्रेवल कर रहा है उसकी हमने वैल्यू प्रोवाइड की है कि I1 इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R1, I2 is flowing through resistor R2. Similarly, I3 input current है to the op-amp from जो node 1 है वहां से. Similarly, I6 input current है non inverting terminal का. Then I4 is flowing across resistor R3 and I5 is flowing across R4. Right? This is all about your circuit diagram. So let us start the analysis part. Analysis में हमें क्या करना है? We need to calculate the output voltage of the circuit. आउटपुट वोल्टेज में हमें क्या चाहिए? हमें ऑलरेडी पता है कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, तो डिफरेंस एम्पलीफायर हमें आउटपुट में क्या देगा? हमें आउटपुट में डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. So before we start the analysis part, सबसे पहले हमारे assumptions चलते हैं. What is that assumption? That जो हमने op-amp लिया है, it is an ideal op-amp. अगर वो op-amp ideal होगा तो उसका gain already infinite होगा, और अगर गेन इनफाइनाइट होगा तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस भी उसका इनफाइनाइट होगा, और अगर किसी चीज का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उसका करंट जीरो होता है. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट कि रेजिस्टर और करंट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. तो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो करंट जीरो हो गया. तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर if input resistance अगर op-amp ideal है, input resistance infinite होगा तो input current will be zero. So that means ये जो op-amp है इसका input current कौन सा है? इसका input current है I3 and I6. तो ये दोनों ही current zero हो जाएंगे. That means I3 is also zero, I6 is also zero. Right? Now I need to calculate the output voltage. So सबसे पहला step हमारा क्या होगा? I will apply KCL at node 1. This is my node 1. ये जो रेड स्पॉट है ये हमारा नोड 1 है. अब यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज KCL? KCL स्टैंड्स फॉर Kirchhoff's current law, और अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's current law all the incoming current is equal to all the outgoing current. तो जिस नोड पर करंट एंटर और एग्जिट करता है उस नोड की हम KCL अप्लाई करते हैं. तो अगर हम नोड 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें I1 करंट जो है वो हमारा इनकमिंग या एंटरिंग करंट है, एंड I2 एंड I3 जो है वो एग्जिटिंग या आउटगोइंग करंट है. सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. बट अगेन हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा I3 और I6 जीरो है बिकॉज ये इनपुट करंट है, एंड इनपुट करंट इज जीरो बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट. सो अगर I3 जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या रह गई? इक्वेशन विल बी I1 इज इक्वल टू I2. राइट? टिल नाउ इट इज क्लियर दैट I1 इज इक्वल टू I2. नाउ अब I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, I2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. हमें इन दोनों करंट्स की वैल्यू निकालनी है. वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I क्या होता है? I इज बेसिकली
वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हमें सिंपल पता है कि हमारा करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर I1 एंड I2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 देखते हैं। I1 फ्लो कर रहा है हमारा इनपुट नोड से लेके नोड 1 तक, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है? इट इज V1 माइनस V अपॉन R1। So I have written here I1 is V1 minus V upon R1. Similarly, I2 क्या होगा? I2 will be V minus V naught upon R2. So it is V minus V naught upon R2. And इन्हें इक्वल किया है क्यों? Because we know that I1 is equal to I2. तो जो I1 की वैल्यू आई और जो I2 की वैल्यू, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, right? So this is what we get. अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. So let us start simplifying this equation. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर यू कैन सी एक v टर्म ये है, एक v टर्म ये है, तो दोनों v टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे एंड v नॉट की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे. सो इन दिस इक्वेशन यू कैन सी कि हमने क्या किया है, v वाली टर्म्स को दोनों को मैं इस साइड लाई इक्वल टू के, बाकी दोनों टर्म्स उधर है. लेकिन अगर मुझे v नॉट कैलकुलेट करना है तो मैं इस टर्म को भी इक्वल टू के इस साइड ले आऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस v1 अपॉन r1 आ जाएगा. सो यू कैन सी यहाँ पर माइनस v1 अपॉन r1 ऐड हो गया. ठीक है, राइट. देन हमें V नॉट कैलकुलेट करना है, तो हम ये R2 को भी खत्म करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे? इस R2 को हम सबके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ भी R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारा सिर्फ V नॉट रह जाएगा. तो जब R2 यहाँ गया तो हमारे पास क्या रह गया? यहाँ पर रह जाएगा R2 बाय R1. यहाँ R2 आएगा तो R2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया. दोनों में से कॉमन V था, वो हमने V कॉमन निकाल लिया. और ये R2 जब यहाँ आएगा तो यहाँ R2 बाय R1 इंटू V1 हो गया. सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. सो अगर इसे हम रीअरेंज कर दें तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज V नॉट क्या आ रहा है? इट इज V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू V माइनस R2 बाय R1 इंटू V1. सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. हमें बेसिकली क्या करना है? हमें चाहिए था V नॉट, लेकिन V नॉट हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस की फॉर्म में चाहिए. बट हम तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस आ रहा है, V और माइनस V1 की रेशियो डिफरेंस आ रहा है. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस चाहिए. जो V है वो इनपुट वोल्टेज नहीं है, वो हमारे नोड 1 की वोल्टेज है. इनपुट वोल्टेज क्या है? V1 एंड V2. तो V1 तो आ रहा है पर V2 नहीं आ रहा है. सो हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है. हमें इस V की वैल्यू को चेंज करना है. इसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास V2 की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी विल डू, हम नोड जो 2 है यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे. राइट, KCL इज अगेन इट इज किरचॉफ करंट लॉ. All the incoming current will be equal to all the outgoing current. So जब इस नोड पर हमने KCL अप्लाई किया, so हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? It is I4 जो है इनकमिंग है और I6 और I5 आउटगोइंग करंट है. तो इक्वेशन विल बी I4 is equal to I6 plus I5. तो ये इक्वेशन आ गई. बट अगेन वी नो दैट कि I6 हमारा 0 होगा. Why? Because it is the input current to the op-amp. और op-amp का इनपुट करंट 0 है क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. तो इक्वेशन क्या रह गई? इक्वेशन रह गई I4 is equal to I5. राइट, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? We need to calculate the value for I4. राइट, अब I4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनपुट वोल्टेज जो है हमारी V2 यहां से लेके नोड 2 तक, जिसकी पोटेंशियल क्या है? V. सो I4 क्या होगा? V2 माइनस V अपॉन R3. बेसिकली दिस इज नॉट V, दिस इज V डैश. जो नोड 1 है इसका पोटेंशियल V है, जो नोड 2 है इसका पोटेंशियल V डैश है. राइट, so what will be the equation for I4? It will be V2 minus V dash upon R3. So यहाँ पर हमने लिख दिया V2 minus V dash upon R3. Similarly, I5 की वैल्यू क्या होगी? V dash minus 0. 0 क्यों? क्योंकि ये ग्राउंडेड है, तो it will be V dash minus 0 upon R4. तो ये इक्वेशन आ गई V dash minus 0 upon R4. राइट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या चाहिए. हमें इस V2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? अगर V वाली इक्वेशंस को हम एक साइड कर दे, तो V वाली इक्वेशंस को हमने एक साइड किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. V2 by R3 is equal to V dash upon R4 plus V dash upon R3. इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? यहाँ से हम V dash, दोनों ही टर्म्स में V और V dash कॉमन है, तो यहाँ से हम V dash कॉमन निकाल लेंगे. और ये जो R3 है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो R3 था, इसे हम यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो R3 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया R3/R4। सो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इट इज V डैश कॉमन में 1 + R3/R4, ये इक्वेशन आ गई। या अगर हमें V डैश की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से इसको जस्ट ऑपोजिट कर सकते हैं। ऑपोजिट कैसे कर सकते हो, आप इसका एलसीएम लेके आपका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में R4 और ऊपर आ जाएगा R4 + R3। तो अगर आपको V डैश की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, राइट। सो नाउ आई हैव वैल्यू फॉर V डैश। अब मुझे एक रिलेशन मेंटेन करना है किसके बीच में, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, V2 की वैल्यू, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए V2 का, क्योंकि हमारे पास V0 तो आ गया पर इस V की वैल्यू चाहिए और हमारे पास V डैश की वैल्यू आई है। तो V डैश की वैल्यू कैसे आएगी, हमें पता है कि जो ओपैम्प के दो टर्मिनल्स होते हैं उनके जो पोटेंशियल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, वर्चुअली शॉर्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टी है ओपैम्प की कि दोनों टर्मिनल्स पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द ओपैम्प प्रॉपर्टी, वर्चुअली शॉर्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो V है वो V डैश के इक्वल होना चाहिए, V इज इक्वल टू V डैश। तो अगर ये V डैश की वैल्यू इक्वेशन थर्ड आई है तो दैट मीन्स V की वैल्यू भी यही होगी, राइट। सो दैट मीन्स अगर V इज इक्वल टू V डैश है तो यहाँ पर जो V डैश की वैल्यू आई है ये इक्वल्स टू V होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई, V की। सो ये वैल्यू हम कहाँ डाल सकते हैं, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकते हैं। मतलब यू कैन सी आई हैव दिस इक्वेशन, यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास इस V की जगह पे हम इसे पुट कर सकते हैं। So we can put this equation number 2 in equation number 1। हम इस equation number 1 में इस V की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इट विल बी लाइक दिस। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 1 + R2/R1 और ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये V की वैल्यू है। किस फॉर्मूले में डाला है हमने, इस फॉर्मूले में जो ये V था इस जगह पे हमने V डैश की वैल्यू डाल दी है। व्हाई, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू V डैश। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू डाल दी तो ये आ गया -R2/R1 इंटू V1, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। फर्दर इसे हमने सिंप्लीफाई किया है, अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे किया है, जो हमारे पास R4/R3 + R4 था इसे हमने डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है। कैसे, अगर आप इसे ध्यान से देखो, अगर आप इसे ऐसे लिखते हो 1 प्लस वेट, अगर आप इसे ऐसे लिखते हो 1 + R3/R4, अगर आपने इसे ऐसे लिखा है, राइट। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा R4/R3 + R4। सो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/R4 + R3, यही आएगा आपका। देखिए R4 + R3/R4 तो फर्दर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अगेन इक्वेशन क्या आ जाएगी, R4/R4 + R3, यही इक्वेशन आ गई। तो यही इक्वेशन को हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया है ताकि हमारे पास एक रेशियो मिल जाए जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए यही चीज आ गई हमारे पास R4/R4 + R3, तो यही इक्वेशन आ गई। सी, तो इसे जस्ट इस इक्वेशन को R4/R4 + R3, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1/1 + R3/R4। तो मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, डिनोमिनेटर में ले आई। तो इसका एक ही मतलब है, चाहे आप इसे ऐसे लिखो चाहे आप इसे ऐसे लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देन इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दिया है और यू कैन से हमने यहाँ से R2/R1 अगर आप कॉमन ले लें, यहाँ से अगर आप R2/R1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। क्या किया है इस इक्वेशन में आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी ये हमारे पास 1 + R2/R1 है, ये भी R2/R1 है। अगर आप यहाँ पर R2/R1 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो गया, R1/R2 की रेशियो में चेंज हो गया। क्यों किया, क्योंकि हमें एक रेशियो मेंटेन करनी है। वो कौन सी रेशियो है, एक ऐसा रेशियो हमें मेंटेन करना है जिससे हम एक परफेक्ट डिफरेंस एम्पलीफायर डिजाइन कर सकें। अब वो क्या कंडीशन है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। वो कंडीशन ये है, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, दिस इज द कंडीशन कि डिफरेंस एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर होता है जो
दो इनपुट वोल्टेजेस में कॉमन जो सिग्नल्स हैं उन्हें रिजेक्ट करेगा और डिफरेंस ऑफ सिग्नल्स को ही सिर्फ वो एम्पलीफाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों इनपुट सिग्नल सेम हो गए, अगर V1 इज इक्वल टू V2 है, अगर सेम है, तो आउटपुट वोल्टेज 0 आना चाहिए, क्योंकि सेम सिग्नल्स को वो रिजेक्ट करेगा। अगर दोनों वोल्टेजेस सेम होंगी तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, क्योंकि एम्पलीफायर ने वो रिजेक्ट कर दिया। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जब आप रेजिस्टेंस की रेशियो को इस तरह से रखते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। मतलब अगर आप ये रेशियो लेके एक सर्किट डिजाइन करते हैं, अगर एक डिफरेंस एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे ये रेशियो लेके, तो आपके आउटपुट पे हमेशा दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस ही आएगा। ऑल राइट, सो ये हमारी डिजाइन कंसिडरेशन है बेसिकली, कि अगर माइंड में हम ये लेके डिजाइन करेंगे तो हमारा आउटपुट हमेशा हमें डिफरेंस एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। राइट, सो इसीलिए हमने यहाँ पर R2 बाय R1 कॉमन लिया है, सो दैट हम यहाँ पर एक रेशियो दिखा सके R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4 की। राइट, दैट इज वाई हमने यहाँ पर R2 बाय R1 कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉमन लेने के बाद अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो अगेन आपकी यही वाली इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस R2 बाय R1। यू कैन ट्राई इट एट होम। राइट, सो अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर होगा। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं और अगर R3 बाय R4 की जगह R1 बाय R2 रखते हैं थर्ड इक्वेशन में, मतलब ये जो जगह है R3 बाय R4 की जगह हम R1 बाय R2 रख दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह जाएगी? ये दोनों चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या रहेगा? R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस R2 बाय R1 इंटू V1, ये आ जाएगा। और R2 बाय R1 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? V0 इज इक्वल टू R2 बाय R1, कॉमन में V2 माइनस V1, एंड दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। सो यहाँ से हम देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज हमारी एग्जैक्ट डिफरेंस है ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। लेकिन ये कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? जब हमने रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस को मेंटेन किया है। तो इसीलिए डिफरेंस एम्पलीफायर की डिजाइनिंग के टाइम पे हमें इस रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये रेशियो मेंटेन रहती है तो हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर डिजाइन हो जाता है। राइट, अगर यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें R2 और R1 की वैल्यू को हम सेम कर दे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्ट इक्वल आएगा डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। Right, so what I have written, if R1 and R2 is equal and if R3 and R4 are equal, then the difference amplifier become a perfect subtractor. अगर R1 R2 इक्वल होंगे, R3 R4 इक्वल होंगे, तो हमारा जो डिफरेंस एम्पलीफायर है वो परफेक्ट सब्ट्रैक्टर बन जाएगा, जो कि डायरेक्टली इनपुट सिग्नल्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। राइट, तो उस केस में आप सर्किट डायग्राम को कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग R1 R2, मैंने डायरेक्ट इसे RR R डैश के फॉर्म में लिखा है। Right, so this is the main concept of difference amplifier. You just need to remember कि जब तक ratio maintain नहीं होगी difference amplifier, you cannot design that amplifier. Right, so this is all about op-amp as a difference amplifier. If you have any query, you can post your question or your comment in the comment box. Thank you so much.